میاں والی عیسیٰ خیل کنڈر پیٹرولنگ پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، کانسٹیبل ہارون خان شہید، 2 دہشت گرد ہلاک، 1 شدید زخمی۔ ہلاک شرپسند دہشت گردی کی کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ آئی جی پنجاب کی حملہ پسپا کرنے اور دہشت گرد جہنم واصل کرنے پر سی ٹی ڈی کو شاباش۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کا سی ایم ایچ کوئٹہ کا دورہ، مستونگ واقعے کے زخمی اور اہل خانہ سے ملاقات، دہشت گرد حملوں کے بارے میں بریفنگ، دہشت گردی کو بیرونی ریاستی سرپرستوں کی پشت پناہی بھی حاصل ہے، ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، ہمارا آپریشن بلا تعطل جاری رہے گا، جنرل سید عاصم منیر۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارتی ایجنسی رو ملوث ہے، شہداء کے خون کا حساب لیں گے، نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے والے مسلمان نہیں ہو سکتے، دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خلاف سخت کارروائی کریں گے، آخری دہشت گرد تک پیچھا کریں گے، ریاست کی عملداری ہر صورت قائم کی جائے گی، نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو۔ مستونگ میں عید میلاد النبی کے موقع پر خون کی ہولی کھیلنے والوں کے خلاف عوام کی جانب سے شدید مذمت، ہمارے دل اس ہولناک واقعے سے شدید دکھی ہیں، فورسز اور دیگر سیکیورٹی ادارے دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں، ہماری پاک فوج دہشت گردی کے خلاف محاذ پر صف اول میں کھڑی ہوتی ہے، عوام کا رد عمل۔ خوشحالی اور ترقی کے سفر میں وزیرستان کے لوگوں کے لیے ایک اور تحفہ، ایس آئی ایف سی کے زیر نگرانی پاک فوج کا جنوبی وزیرستان میں بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنانے کے لیے اہم قدم، زرمالان میں پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز، 1000 ایکڑ بنجر زمین کو کاشتکاری کے قابل بنایا جائے گا، مقامی کاشتکاروں کی معیشت بہتر ہوگی، غذائی قلت پر بھی قابو پایا جائے گا۔ بھارتی من گھڑت آپریشنز اور ان کی تعریف کے لیے جعلی فیس بک اکاؤنٹس کا راز فاش، بھارتی فوج نے فیس بک پر جعلی اکاؤنٹس کا ایک وسیع نیٹ ورک بنا رکھا ہے جس کے ذریعے پاکستان اور چین بالخصوص مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی نئی رپورٹ میں بھارتی افواج کے سوشل میڈیا پر جھوٹے پروپیگنڈے کا تجزیہ۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان، پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 323 روپے 38 پیسے فی لیٹر مقرر، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے کی کمی، نئی قیمت 318 روپے 18 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی پر عوام کا خوشی کا اظہار، پیٹرول کی قیمت میں کمی غریب عوام کے لیے بہتر ثابت ہوگی، عوام کا رد عمل۔ عوامی جمہوریہ چین کا 74واں یوم تاسیس آج منایا جا رہا ہے، نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی چینی حکومت اور عوام کو مبارکباد، پاکستان اور چین کے مابین تعلقات باہمی احترام، تاریخ اور ثقافت کے مضبوط رشتوں پر استوار ہیں، آئندہ برسوں میں دونوں ملک کامیابیوں کے مزید سنگ میل عبور کریں گے۔ ہیروز آف پاکستان، نمیرہ سلیم پاکستان کی پہلی خلاباز ہیں جنہوں نے بچپن سے تاروں پر پہنچنے کا خواب دیکھا، حکومت کی جانب سے پاکستانی پہلی خلاباز کے طور پر پہنچنے والی پہلی پاکستانی ہیں۔ بھارتی فوجیوں مقبوضہ جموں کشمیر میں ریاستی دہشت گردی، گزشتہ ماہ 13 کشمیریوں کو شہید کیا گیا، 8 زخمی، ستمبر کے مہینے میں کم از کم 157 شہریوں اور سیاسی کارکنوں کو حراست میں لیا گیا، محاصرے اور تلاشی کی 248 کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران رہائشی مکانوں کو نقصان بھی پہنچایا گیا، کشمیر میڈیا سروس۔ افغانستان کا بھارت میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان، افغانستان کے سفارت خانے کی جانب سے بھارتی وزارت خارجہ کو خط ارسال، خط میں واضح طور پر ان مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے جن کی وجہ سے یہ انتہائی قدم اٹھانا ضروری ہوا، سفارتی حمایت نہ ملنا بھی سفارت خانہ بند ہونے کی وجہ قرار دی گئی ہے۔ مالدیو کے صدارتی انتخابات میں اپوزیشن لیڈر اور پیپلز نیشنل کانگریس کے امیدوار محمد معیز کامیاب، انتخابات میں 54% سے زائد ووٹ حاصل کیے، موجودہ صدر ابراہیم صالح کو شکست جنہوں نے 46% ووٹ حاصل کیے، محمد معیز نے انتخابات میں انڈیا آؤٹ مہم کا آغاز کیا تھا۔ چین میں 19ویں ایشین گیمز ویٹ لفٹنگ میں شمالی کوریا کی ری سونگ گم نے طلائی تمغہ اپنے نام کر لیا،
216 किलोग्राम वजन उठाकर नया आलमी रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। खवातीन ट्रायथलॉन में गोल्ड मेडल जापान की योको तकाहाशी ने जीता। मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में चीन ने भारत को हराकर सोने का तमगा हासिल किया। मेडल्स टेबल पर मेजबान चीन की वाह से बढ़तरी। एशियन गेम्स पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और आईसीसी वर्ल्ड कप पाकिस्तान अपना दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। कौमी क्रिकेटर्स आज राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में प्रैक्टिस करेंगे। वार्म अप मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि मियांवाली की तहसील ईसा खेल के इलाके कंडल में पेट्रोलिंग पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला किया। CTD और पंजाब पुलिस ने 4 घंटे की शदीद लड़ाई के बाद 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए, जबकि एक दहशतगर्द शदीद जख्मी है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। हलाक होने वाले शरपसंद मुल्क भर में दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी हैं। दहशतगर्दों के दीगर साथियों का ताक़ुब भी किया जा रहा है। मियांवाली की तहसील ईसा खेल के इलाके कंडल में पेट्रोलिंग पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला किया। नाज़रीन, CTD और पंजाब पुलिस ने 4 घंटे की शदीद लड़ाई के बाद 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए, जबकि एक दहशतगर्द शदीद जख्मी है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बताया है कि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। हलाक होने वाले शरपसंद मुल्क भर में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी हैं। दहशतगर्दों की दीगर साथियों का ताक़ुब भी किया जा रहा है। मियांवाली की तहसील ईसा खेल के इलाके कंडल में पेट्रोलिंग पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। CTD और पंजाब पुलिस ने 4 घंटे की शदीद लड़ाई के बाद 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए, जबकि एक दहशतगर्द शदीद जख्मी है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। हलाक होने वाले शरपसंद मुल्क भर में दहशतगर्दी की गई कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। वाक़ई की मजीद तहकीकात जारी हैं। इसी हवाले से नाज़रीन, गुफ्तगू करने के लिए हमने राबता किया है IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया PTV न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। PTV का शुक्रिया। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा एस्टैब्लिश्ड, सबसे ज्यादा पुराना, हमारे बचपन का साथी PTV, बहुत शुक्रिया आपका। जी IG साहब, आज CTD और पंजाब पुलिस ने मियांवाली की जो तहसील ईसा खेल है उसके इलाके कंडल में पेट्रोलिंग पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले को पसपा किया है और इसमें 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल भी कर दिया। सबसे पहले तो हम चाहेंगे जरा इस वाक़े के हवाले से हमारे नाज़रीन को जरा आप तफसीलन अपडेट कर दें। तो बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहली बात तो ये कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, ISI, IB तमाम की इंफॉर्मेशन आती रहती है। प्लानिंग है, हमने वी हैव मेड इट टू देयर नहीं होते के ऊपर है की बनी हुई है। भारत हमें अलग से हमारे जवान पेट्रोलिंग पुलिस के अफसर वहीद हमारे DIG है, उनकी क़यादत में उन्होंने वहाँ पे छतों के ऊपर LMG के साथ मौजूद थे, G3 के साथ मौजूद थे। क्रॉस फायरिंग हुई, 2 तरफ से हमला हुआ। 14 बंदे थे। रात के अंधेरे में आए, हमने उनके जवाबी फायरिंग की। हमारा एक बंदा ओल्ड लेके फायरिंग कर रहा था, उसकी आंख में फायर लगा। पाकिस्तान का जवान शहीद हुआ। वो पुलिस का नहीं था, वो आर्मी का भी समझ लीजिए, वो फ्रंट के कोर्स कांस्टेबल समझ लीजिए, वो कराची पुलिस समझ लीजिए, वो पाकिस्तान का बेटा था। और हमारी जवाबी फायरिंग से वो जख्मी हुए, भागे। वहाँ ब्लड मिला। DPO मौके पे पहुंची। याद है, ये वही DPO जिसने 9 मई का एयरफोर्स के ऊपर हुआ वो हमला भी नाकाम बनाया था। इसके बाद हमारे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के सितारा शुजात वसीम अहमद सयाल की टीम पहुंची। उन्होंने वहाँ पे जो है ब्लड को देखा, मौजूद ब्लड था, वो अल्ट्रा वायलेट में नजर आता है, इंफ्रारेड में हम करते हैं, फॉलो करते हैं इनको। हमने वहाँ पे नाइट विजन डिवाइसेस में उनको फॉलो करना शुरू किया। बड़ा क्रॉल करके जाना पड़ा। वहाँ पे हमारी फाइटिंग हुई क्योंकि 1 किलोमीटर अंदर आई है खैबर पख्तूनख्वा से, सिर्फ 1 किलोमीटर आगे पहाड़ है। वहाँ पे गए, इनका मुकाबला हुआ है। 2 जलील झटिया फजूल और जहनवी जो है भेजनी है और एक मुकाबले जारी है इस वक्त भी। CTD अंडर वसीम अहमद सयाल और इनके ROs एलीट फोर्स वी आर फाइटिंग ब्रेवली। इलाका इंशाल्लाह शाम तक क्लियर होगा। वैसे हमारी साइड का इलाका क्लियर है। हम आगे खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन कर रहे हैं। सही। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, फर्ज की राह में शहादत का अजीम मकाम पाने वाले कांस्टेबल हारून खान ने भी अहम किरदार अदा किया है। ऐसे कई बेटे वतन की खातिर जानें कुर्बान कर रहे हैं। बतौर फोर्स कमांडर आप इन शहादतों को कैसे देखते हैं? ये इस साल की हमारी 12वीं शहादत है। हमारा एक जवान कच्चे में शहीद हुआ। हमारे जवान डॉल्फिन के शहीद हुए, डाकुओं को रोकते हुए। हम रेपिस्ट के साथ मुकाबले में जो कि डकैतियों में रेप डालते हैं,
लड़कियों को, बच्चों को, उनके साथ मुकाबले में हमारे जवान शहीद हुए। 108 पंजाब पुलिस के जवान शदीद जख्मी हुए हैं मुख्तलिफ एनकाउंटर्स में। हमने 288 बंदों को जहन्नुम वासिल किया है और ये आज 290 हो गए, ये दो मिला के। ये हम पंजाब पुलिस की शहादतों की दास्तान 1600 से ज्यादा है। 1800 1900 के करीब गाजी हैं जिनके बाजू टांगे कट गई, धमाकों में कमर पे गोली लग के पूरा जिस्म बेकार हुआ, आंखें जाया हुई, गुर्दे बेकार हुए। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से लोगों का बिजनेस चल रहा है, बेटियां स्कूलों को जा रही हैं, कारोबार तरक्की कर रहे हैं। आप उस लाइफ स्टाइल से ड्राइंग रूम में बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए नेटफ्लिक्स पे फिल्में देखते हैं और वर्दी और एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बातें करते हैं। ये तमाम लोग पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनके लिए मैसेज है कि हम मिल के इसको बीट करते हैं और इंशाल्लाह ताला ये शहादतें, ये जख्मी होना, ये हमारी नौकरी का हिस्सा है। हम उनका ख्याल भी करते हैं, वो हमारी फैमिली है और वी आर प्राउड ऑफ दैट। सही। आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर हमारे साथ मौजूद हैं और मियांवाली की तहसील ईसा खेल के इलाके कंडल में पेट्रोलिंग पोस्ट पर दहशतगर्दों ने जो हमला किया उस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मियांवाली में ईसा खेल कंडल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पंजाब पुलिस के बहादुर सपूतों ने जुर्रत और बहादुरी से जान पर खेलकर बर वक्त कार्रवाई करके हमला नाकाम बनाते हुए दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। हमला नाकाम बनाने वाले पुलिस एहलकारों को शाबाश देता हूँ। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हमले में शहीद पुलिस एहलकार हारून खान को खिराज अकीदत भी पेश किया और कहा कि शहीद पुलिस एहलकार हारून खान ने फ़र्ज की अदायगी में जान देकर आला मिसाल कायम की। उन्होंने कहा कि शहीद हारून खान कौम का हीरो है, अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला ने शहीद के अहल खाना से दिली हमदर्दी भी की। उन्होंने कहा कि शहीद एहलकार हारून खान के अहल खाना की हर मुमकिन देखभाल की जाएगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने मियांवाली में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि पुलिस एहलकारों ने बहादुरी से लड़ते हुए दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। अपने बयान में निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने कहा कि पुलिस के बहादुर जवानों ने 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। जाम शहादत नोश करने पर पुलिस एहलकार हारून खान को खिराज अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि शहीद हेड कांस्टेबल के बुलंद दर्जात के लिए दुआ गो हैं। गम की इस घड़ी में शहीद एहलकार के अहल खाना के साथ खड़े हैं। सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। मुल्क दुश्मन पाकिस्तान में अमन और तरक्की को सबोताज करने के दर पे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों का मजहब और नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्द और उनके सहूलतकार पाकिस्तान और अवाम के दुश्मन हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया, जहां उन्हें मस्तों और यूरोप में हालिया दहशतगर्द हमलों पर ब्रीफिंग दी गई। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला, निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम ने भी ब्रीफिंग में शिरकत की। शुरका ने मस्तोंग, हंगू और यूरोप के शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शोहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि 12 रबीउल अव्वल को दहशतगर्दी के वाक़यात ख्वाहिश के मज़मूम अज़ाइम को जाहिर करते हैं। दहशतगर्दी को बैरूनी रियासती सरपरस्तों की पुश्तपनाही भी हासिल है। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के नजरिए और उनके पुश्तपनाहों के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया है। मुसल्लह अफवाज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम अमन, माशी तरक्की और इंसानी तरक्की के लिए मुकम्मल पुरज़्म है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर और बाहर शरपसंद क़ुव्वतों को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँच रही है। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा का भी दौरा किया और मस्तूंग वाक़े के ज़ख्मियों और अहल खाना से मुलाकात की। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की बहादुरी को सराहा और शोहदा के अहल खाना को मुकम्मल ताउन और हिमायत का यकीन दिलाया। आर्मी चीफ ने जख्मियों और शोहदा के लवाहिकीन को यकीन दिलाया कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। मस्तोंग धमाके में कीमती जानी नुकसान पर सूबे की फजा सोगवार रही। निगरान वज़ीर आला अली मर्दान डोमकी ने पुलिस और CDD को हिदायत की है कि तहकीकात में तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखा जाए। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं कि दहशतगर्दों का ताक़ुब करते हुए उनके तमाम ठिकाने खत्म करके रहेंगे। तफसील जानते हैं वक़ार अहमद से। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारतीय इंटेलिजेंस रॉ मुलविस है। मस्तूम सानहे में 55 अफराद शहीद हुए। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। जानते हैं कि कौन है और कहां से कर रहा है। हमें बहैसियत रियासत पता है कि कौन कर रहा है,
کہاں سے یہ سب ہو رہا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے, کوئی امپیچمنٹ کی پالیسی نہیں ہے. ہم ان کو ان کے بلوں سے ڈھونڈیں گے, ہم ان کے خلاف جتنا بڑا آپریشن کرنا پڑا, چاہے وہ آئی بی اوز کی صورت میں ہو, چاہے جو مرضی فورس استعمال کرنی پڑی. ایک پاکستانی کا خون اس بے دردی کے ساتھ بہایا گیا, اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ان دہشت گردوں کے لیے, ان کے فیسیلیٹیٹرز کے لیے, ان کے سمپتائزرز کے لیے. نگران وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ تحقیقات کر رہے ہیں دہشت گردوں کو کون سپورٹ کر رہا ہے, نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے والے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں. قرآن میں بڑا واضح فرمایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اصلاح کے نام پر, اسلام کے نام پر معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر رہے ہیں. یہ بنیادی طور پہ فسادی ہیں, اور ان فسادیوں کو انہی لائنز کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ اس ریاست پاکستان کے تمام ادارے ہم مل کے ایک سنرجی کے ساتھ, چاہے وہ گورنمنٹس ہوں, چاہے ہماری فوج ہو, چاہے انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں, سول ہوں, ملٹری ہوں, سب مل کے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں گے. سانحہ مستون کی تحقیقات اور ذمہ داروں کا تعین کیا جا رہا ہے. ریاست کے ریٹ قائم رکھنے اور دہشت گردوں کے خلاف زیرو ٹالرنس یقینی بنانے کے حوالے سے اہم فیصلے بھی لیے گئے ہیں. مستونگ دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کے لیے چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی اور نگران وفاقی وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی سی ایم ایچ اور ٹراما سینٹر کوئٹہ بھی گئے. مستونگ دھماکہ خودکش تھا. حملے میں 50 کے قریب افراد زخمی بھی ہوئے. واقعے کی ایف آئی آر سی ٹی ڈی کوئٹہ میں نامعلوم حملہ آوروں کے خلاف درج کی گئی ہے. تفتیش بھی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. دھماکے میں 6 سے 8 کلو گرام دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا. 2018 کے درین گڑھ سانحے کے بعد مستونگ میں یہ دوسرا دلخراش واقعہ تھا. وقار احمد, پی ٹی وی نیوز, کوئٹہ. مستونگ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر خون کی ہولی کھیلنے والوں کے خلاف عوام کی جانب سے شدید مذمت. ہمارے دل اس ہولناک واقعے سے شدید دکھی ہیں. فورسز اور دیگر سیکیورٹی ادارے دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. پاکستان مستونگ میں جو ایک ہولناک واقعہ پیش آیا جس میں میلاد کے ایک جلوس پر حملہ ہوا, انتہائی اندھوناک واقعہ ہے. جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اس وقت ہماری فوج دہشت گردی کے خلاف محاذ پر فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو کر مقابلہ کر رہی ہے. بحیثیت قوم, بحیثیت پاکستانی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی فوج کو مضبوط کریں. یہ جو حالات چل رہے ہیں نا پاکستان کے, جو بھی سب کچھ چل رہا ہے, دھماکے ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, سب کو مل کے ایک ساتھ ہونا چاہیے. اتنے پاک مقدس دن میں عید میلاد النبی کا جشن منا رہی ہے, تو اس موقع پہ اس قسم کی دہشت گردی کی بزدلانہ واقعات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں ہم. چند ہمارے پڑوسی ملک ہے جو اتفاق نہیں لانا چاہتے پاکستان میں. جو ہم کو دھماکہ ہوا ہے, اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے اتفاق میں رہے, ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے رہے. اس میں ہمارے علماء کرام شہید ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی فورسز اور اپنے سیکورٹی اداروں سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں. سیاسی اختلافات سائڈ پہ کر کے نہ یہ دہشت گردی کے خلاف متحد ہونا چاہیے, ہمیں اس کو ختم کرنا چاہیے. ہمیں میلاد اور 12 ربیع الاول انشاءاللہ ہر سال اسی طرح ہم جوش و خروش سے منائیں گے. دشمن کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ اس کی آپ کی یہ جو کاوش ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی. 28 اور 29 ستمبر کو یوب کے علاقے سمباسا اور پاڑا چنار میں دہشت گردوں کے ساتھ ہونے والے 2 مختلف فائرنگ کے واقعات میں شہید ہونے والے سیکیورٹی اہلکاروں کی اپنے اپنے آبائی علاقوں میں تدفین کر دی گئی. شہید ہونے والوں میں حوالدار عبدالستار, لانس نائک محمد عدنان, لانس نائک اعظم خان, سپاہی ندیم خان اور لانس نائک غیرت گل شامل ہیں. نماز جنازہ میں عسکری اور سول حکام, شہید کے عزیز و اقارب اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی. آئی ایس پی آر کے مطابق ہمارے شہداء کی یہ قربانیاں دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں ہمارے حوصلے اور عزم کو تقویت دیتی ہیں اور شہداء کا خون رائگاں نہیں جائے گا. تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی وطن کی مٹی نے پکارا, ہمارے جوانوں نے جان کی پرواہ کیے بغیر لبیک کہا. حوالدار محمد نوی بے باک, نڈر اور وطن پر مر مٹنے کا عزم رکھنے والے جانباز مجاہد نے وطن عزیز کی خاطر شہادت کو گلے لگایا. حوالدار محمد نوید 8 ستمبر 2016 کو ایل او سی پر ملک کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے. شہید نے سوگواران میں بیوہ, بیٹی اور بیٹے چھوڑے. حوالدار محمد نوید شہید کے اہل خانہ نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کچھ یہ کہا. ایک ایسا لمحہ تھا جو بیان نہیں کیا جا سکتا. تو وہ لمحہ میں جب سوچتی بھی ہوں, کال آئی اور
बिल्कुल मतलब बयान नहीं किया जा सकता। वो बहुत ऐसे लगा था जैसे हम ना एकदम से अकेले रह गए हैं, दुनिया में अकेले रह गए हैं। उस वक़्त तो जो जज्बात थे वो तो कोई बयान ही नहीं ना कर सकता। बहुत उस टाइम तो कुछ समझ नहीं थी आ रही हो क्या रहे। बहुत दफ़ा ऐसा ज़िंदगी में हम किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे हम ना हेल्पलेस टाइप फील कर रहे होंगे, क्योंकि फिर बंदे के माइंड में आता है कि यार काश अगर पापा होते हैं ना तो ये चीज़ इस तरह हो सकती थी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने शहीद कुरान पाक में फैसला है शहीद ज़िंदा है, और मैंने अपनी ज़िंदगी में इसको महसूस किया है, लिटरली महसूस किया। हर मौके पे जब मुझे मुश्किल पेश आती है मुझे लगता था वो मेरे साथ हैं, और वो साथ होते थे। उन्होंने हमारी मदद की हर मुश्किल वक्त में। जहाँ मुझे लगा था अब मैं बेबस हो गई हूँ, अब मुझे उनकी ज़रूरत है, और वो वहाँ पे मौजूद होते थे। शहादत की मौत का एक अलग रुतबा है, एक अलग खुशी होती है सोच के कि इंसान की मौत हो तो शहादत की। मेरा छोटा बेटा है, उसको मजाक से वो कहते थे मेरा फौजी बेटा है ये। उनकी शुरू से एक विश होती थी कि मेरा अदनान जो है छोटा भाई मेरा पीएमए में वो आर्मी में जाए। मुझे हमेशा कहते थे इंजीनियर बनाना है आपको हमने। अक्सर लोग मुझे यही कहते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड शहीद हो गए, इतना बड़ा हादसा हो गया, फिर तुम बेटे को उसी लाइन पे भेज रहे हो। जिस दर्द से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी के बाद नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 11 रुपए की कमी की गई है। नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। नई कीमतों का इतलाक हो गया है। मुल्क भर में पेट्रोल की कीमतों में कमी पर अवाम ने बेहद खुशी का इजहार किया है। इस हवाले से शहरियों ने इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि पेट्रोल की कीमत में कमी गरीब अवाम के लिए बेहतर साबित होगी। ये निगरान हुकूमत और आर्मी चीफ की कोशिशों का नतीजा है। इससे महंगाई में भी कमी आएगी। अभी शुक्र है गवर्नमेंट को, जिसने भी ये करवाया है उसका हम शुक्र अदा कर सकते हैं, और इससे ये होप मिलता है कि यार आगे आने वाले टाइम में इससे और भी कम होगा। वैसे भी आप देख रहे हैं डॉलर भी कम आया है, तो हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं। बेहतरीन एक अच्छी न्यूज़ सुनने में आ रही है कि पेट्रोल में कीमतें कम हो रही है, तो इसमें गरीब आवाम के लिए फ़ायदा होंगे। ये एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये निगरान हुकूमत और आर्मी चीफ की कोशिशों का नतीजा है। इससे जो है ना महंगाई को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। फ्यूल की प्राइसेस कम हुई हैं और हम चाहते हैं मजीद कम हो ताकि आवाम को और ज़्यादा रिलीफ मिल सके। ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है आवाम के लिए। तो आवाम इस महंगाई के दौर में बहुत तपिस रहे थे, तो आवाम को फ़ायदा है इस वक्त मुल्क को। तो इस महंगाई में हुकूमत अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे किरदार अदा कर रहे हैं। पता चल रहा है कि पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान और खासतौर पर हमारे जनरल साहब को चाहिए कि वो पेट्रोल के साथ साथ बाकी चीजों के ऊपर भी जरा नजरसानी करें। मिडिल क्लास लोग हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। दिस इज वेरी गुड कि नीचे आ रहे हैं और सबको इसका फायदा होगा। हुकूमत ने ये फैसले लिए, मैं उस फैसले से बहुत ज्यादा खुश हूँ, और निगरान हुकूमत से बस यही गुजारिश है हमारे लिए जो बेहतर हो सके वो चीज करे। जी फ्यूल की कीमतें कम हुई है और खुशाइंद है, तो मजीद कम होनी चाहिए कीमतें पेट्रोल की। पेट्रोल की कीमत कम हो गया है, इससे आवाम के लिए रिलीफ मिलेंगे। हम मजदूर लोग हैं, ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, तो हमारे लिए अच्छी बात है। आवाम पूरे आवाम के लिए अच्छी बात है, खुशखबरी है। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहा है। गवर्नमेंट का ये अच्छा इकदाम है कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें मजीद रिलीफ दे। पेट्रोल की कीमतों में कमी हो रही है। जनरल साहब से भी रिक्वेस्ट है बिजली के बिल और गैस के बिल के ऊपर भी जरा गौर किया जाए। कीमत बहुत कम हो गया। नए हुकूमत ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है, हमें बहुत खुशी है। ये एक बहुत अच्छा फैसला किया है हुकूमत ने कि ये पेट्रोल कम कर दिया है, तो ये एक अच्छा इनका डिसीजन था कि उन्होंने फ्यूल प्राइस कम किया। निगरान हुकूमत ने ये जो पेट्रोल में कमी का ऐलान किया है, इससे हम सब खुश हैं, और अगर और कम करेगी तो हम और भी खुश होंगे। डॉलर भी नीचे आ गया माशाल्लाह, पेट्रोल भी कम आ रहा है इंशाल्लाह। जिस चीज़ के जो है ना रेट बढ़ गया वो भी नीचे आ जाएगी, गरीबों के लिए सही फ़ायदा हो जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि पूरी दुनिया में टीवी प्रोग्राम या तो लाइव होते हैं या रिकॉर्ड। ये शायद हमारे मुल्क में ही है कि कुछ मीडिया आइंस्टाइन ने एज लाइव की इस्तिलाह तैयार की है। अपने एक ट्वीट में निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पीटीवी न्यूज़ को वाज़ेह तौर पर आलमी कन्वेंशंस इस्तेमाल करने और एज लाइव की इस्तिलाह छोड़ने की हिदायत जारी की गई हैं।
عوامی جمہوریہ چین کا آج قومی دن منایا جا رہا ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے قومی دن پر چین کی حکومت اور عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ وقت کے ساتھ پاکستان اور چین کے تعلقات پہلے سے زیادہ مضبوط اور شاندار ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ برسوں میں دونوں ملک کامیابیوں کے مزید سنگ میل عبور کریں گے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے چین کے قومی دن کے موقع پر چینی ہم منصب وانگ جی اور چین کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ ٹویٹر پیغام میں نگراں وزیر خارجہ نے کہا کہ آج ہم اس عظیم قوم کی شاندار تاریخ، ثقافت اور کامیابیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاک چین دوستی کو مزید بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اعادہ بھی کرتے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے جمہوریہ چین کے 74ویں یوم تاسیس کے موقع پر چینی صدر شی جن پنگ، چیئرمین نیشنل پیپلز آف کانگریس ریپبلک آف چائنا اور چین کی پارلیمان اور عوام کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ دونوں ملکوں کے مابین تعلقات باہمی احترام، تاریخ اور ثقافت کے مضبوط رشتوں پر استوار ہیں۔ چین ہر مشکل وقت میں پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ صدر شی جن پنگ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا خطے کے عوام کے لیے اہم تحفہ ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل سے خطے میں ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ چین میں پاکستان کے سفیر معین الحق نے بھی چین کو قومی دن پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یہ خاص دن نہ صرف عوامی جمہوریہ چین کے قیام کی نشاندہی کرتا ہے بلکہ ایک عظیم قوم کی قومی تجدید اور جدید سوشلسٹ ملک کے ہدف کو حاصل کرنے کے عزم، لچک اور محنت کی بھی علامت ہے۔ نگراں وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن سمیت مقامی مالیاتی اور سرمایہ کار اداروں کو نجی فنڈز کے قیام اور بیرونی سرمایہ کاروں کے ساتھ مشترکہ منصوبے شروع کرنے کے لیے مکمل تعاون فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ایس سی سی پی کے زیر اہتمام مالیاتی اداروں کی جانب سے پرائیویٹ فنڈز کے قیام سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ماحولیاتی بہتری کے لیے کام کرنے والے عالمی اداروں اور سرمایہ کار کمپنیوں کو راغب کرنے کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ رواں مالی سال کے لیے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ میں 31 اکتوبر تک توسیع کی گئی ہے۔ ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع تجارتی اداروں ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی درخواست پر کی گئی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پنجاب ہاؤس کراچی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پنجاب ہاؤس کراچی کے ریونیو جنریشن اور اپ گریڈیشن پلان کی منظوری دی۔ گراؤنڈ اور فرسٹ فلور کا کرایہ 3 لاکھ روپے ہوگا۔ آن لائن بکنگ کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ نجی کمپنیاں اور ادارے پنجاب ہاؤس کراچی میں تقریبات کر سکیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے پنجاب ہاؤس کے ڈائننگ ہال، ڈرائنگ روم اور کمروں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے گراؤنڈ اور فرسٹ فلور کا تفصیلی جائزہ لیا اور اپ گریڈیشن کے لیے ضروری ہدایات دیں۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح لیسکو ریجن میں بھی بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ آج کریک ڈاؤن کے 24ویں روز مزید 754 کنیکشن بجلی چوری میں ملوث پائے گئے، جن کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ اب تک 243 بجلی چوروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان میں 19 کمرشل، 20 زرعی اور 712 گھریلو کنیکشن ہیں۔ تمام کنیکشن منقطع کر کے ان کو یونٹس ڈیڈکشن بل کی مد میں چارج کیے گئے ہیں۔ آپریشن کے دوران بجلی چوروں کے ساتھ ساتھ ان کی سرپرستی کرنے والے لیسکو افسران اور ملازمین کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ گیپکو کا بھی بجلی چوروں کے خلاف آپریشن 25ویں روز میں داخل۔ گیپکو ٹیموں نے کامیاب کارروائیاں کر کے مزید 34 بجلی چور پکڑ لیے۔ گیپکو چیف محمد ایوب نے بتایا کہ بجلی چوری کی روک تھام یقینی بنانے کے لیے ٹیمیں چھٹی کے روز بھی متحرک ہیں۔ پکڑے جانے والے غیر قانونی کنیکشنز میں 50 زرعی، 8 صنعتی، 38 کمرشل اور 1150 گھریلو کنیکشنز شامل ہیں۔ اب تک بجلی چوروں کو 11 کروڑ 31 لاکھ روپے کے جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بجلی چوروں اور نادہندگان سے قومی خزانے کی ایک پائی وصول کریں گے۔ ان کے لیے زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ ملتان میں میپکو واجبات کے نادہندگان سے وصولی کی مہم جاری ہے۔ 73,992 نادہندگان سے 23 روز میں 1.5 ارب روپے وصول کر لیے گئے۔ عارف والا میں 2 کروڑ 92 لاکھ کے نادہندہ کسان اتحاد کے 9 اراکین کے ٹرانسفارمرز اتار لیے گئے۔ بجلی چوری کے خلاف جاری مہم میں اب تک 5,558 افراد کو 38 کروڑ 87 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ سنگین جرم کے مرتکب افراد سے 13 کروڑ 57 لاکھ روپے وصول کیے گئے۔ مہم میں 5,355 بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کر کے 4,046 افراد گرفتار کیے گئے۔ بہاول نگر میں میپکو ٹیموں کی جانب سے بجلی چوری کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اب تک بجلی چوروں کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لائی گئی ہے، اسی بارے میں بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ رانا فیصل رحمان۔
बहावल नगर में मैपको टीमों की भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। मैपको टीमों की जानिब से अब तक जिला भर में 5208 मकामात पर छापे मारे जा चुके हैं। छापों के दौरान 192 बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए, जिनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। बिजली चोरों से मजमूई तौर पर 3,11,987 यूनिट्स की बिजली चोरी पकड़ी गई है। बिजली चोरी करने वालों को 1,44,41,258 रुपए के जुर्माने भी कर दिए गए हैं। पुलिस ने 188 बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। मुतादिद नादेनगान फैक्ट्रियों, कमर्शियल प्लाजों और ट्यूबवेल्स के बिजली कनेक्शन मुनक़ता करके ट्रांसफार्मर उतारकर ऑफिस में जमा कर लिए गए हैं। एससी वापडा का कहना है कि बिजली चोरी करने वाले अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई इसी तरह जारी रहेंगी। राना फैसल रहमान, पीटीवी न्यूज, बहावल नगर। निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा है कि पोलियो का खात्मा माशरे के हर तबके की जिम्मेदारी है। तमाम वालिदैन बच्चों को इंसदाद पोलियो के खतरे जरूर पिलवाएं। इंसदाद पोलियो मुहिम के बारे में गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर सेहत ने कहा कि पढ़े लिखे अफराद पोलियो के खात्मे के लिए आगाही फैलाएं। डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि पोलियो वायरस अब मुल्क के महज चंद इलाकों में बाकी है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल सर्टिफिकेशन के लिए जरूरी है कि 30 साल तक पोलियो का कोई केस जाहिर न हो। वज़ारत क़ानून ने सिविल तिजारती सालिसी पर 6 रोज़ा ट्रेनिंग का अहतमाम किया। मेडिटेशन ट्रेनिंग कोर्स में बलूचिस्तान के जजेस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नामवर वकला, पिम्स, FPR, कानून के पेशा वराना अफराद शामिल थे। ट्रेनिंग कोर्स के इख्तितामी सेशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूसिंग जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भी शिरकत की। इफ्तिताही सेशन की सदारत वज़ीर क़ानून व इंसाफ अहमद इरफान असलम और सेक्रेटरी वज़ारत क़ानून व इंसाफ राजा नईम अकबर ने की। मेहमानान खुसूसी ने पाकिस्तान में सालिसी निज़ाम को आगे बढ़ाने में शामिल तमाम स्टेक होल्डर्स की मुश्तरका कोशिशों को सराहते हुए इंसाफ को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे तरबियती इक़दामात की अहमियत पर जोर दिया। खुशहाली और तरक्की के सफर में पाक फौज की जानिब से वज़ीरिस्तान के लोगों के लिए एक और तोहफा। SIFC के ज़ेर निगरानी पाक फौज ने जनूबी वज़ीरिस्तान में बंजर ज़मीनों को काबिल काश बनाने के लिए अहम कदम उठाया है। SIFC की ज़ेर निगरानी जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला ज़रमालान में पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़ हो चुका है। प्रोजेक्ट के इब्तदा में 1000 एकड़ बंजर ज़मीन को काश्तकारी के काबिल बनाया जाएगा और उसके बाद 44,000 एकड़ ज़मीन को इस प्रोजेक्ट के जरिए काबिल काश्त बनाया जाएगा। इस मंसूबे से न सिर्फ मकामी काश्तकारों की मईशत बेहतर होगी बल्कि ग़िज़ाई क़िल्लत पर भी काबू पाया जाएगा। अवाम का कहना है कि इस मंसूबे से इलाके में वसी पैमाने पर काश्तकारी को फ़रोग़ मिलेगा, जिससे रोज़गार के मौक़े भी पैदा होंगे। इलाके की अवाम ने पायलट प्रोजेक्ट की तकमील पर पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान नमीरा सलीम पाकिस्तान की पहली खलाबाज हैं जिन्होंने बचपन से तारों पर पहुंचने का ख्वाब देखा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की पहली खलाबाज के तौर पर ऑफिशियली मुतारिफ करवाया गया। नमीरा सलीम साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली पाकिस्तानी हैं। मेरा नाम नमीरा सलीम है और मैं एक ख्वाब लेके पैदा हुई थी और वो ख्वाब सिर्फ एक ख्वाब था। सितारों तक पहुंचने का ख्वाब और एक एस्ट्रोनॉट बनने का ख्वाब। पैदा होते ही एक इनर फीलिंग थी कि मैं बड़ी होकर एस्ट्रोनॉट बनूंगी और मैं अपने पेरेंट्स को बचपन में कहती थी कि मुझे खिलौनों से नहीं खेलना बल्कि मुझे स्पेस में जाना है। ये जो मेरा रिकॉर्ड है किसी ने तोड़ा नहीं और आज 17 साल के बाद भी मैं फर्स्ट पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट हूँ। As a woman going to the North Pole, South Pole, skydiving from Mount Everest, लेकिन मैंने हर रिस्क और हर डेंजर को फेस किया इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए।
मैं पहली पाकिस्तानी खलाबाज हूँ और मेरी स्पेस फ्लाइट इंशाल्लाह ताला 5 अक्टूबर को जो हो रही है उसमें मैं पूरी नेशन को और स्पेशली हमारे मुल्क की जो लड़कियां हैं और जो फीमेल्स हैं उनको मैं इंस्पायर करूंगी टू रीच फॉर द स्टार्स। ज़रूरी नहीं है कि हमारे ख्वाब बहुत बड़े हों, लेकिन ये ज़रूरी है कि हमारे ख्वाब हों और हम ख्वाब देखें और हम उनमें बिलीव करें और हम डेयर करें कि हम वो ख्वाब एक दिन पूरे करेंगे। आप मेरा एग्जाम्पल लें, 24 करोड़ आवाम में से एक लड़की ड्रीम करती है टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट एंड 17 साल लगते हैं और आज भी शी इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट एंड बहुत प्राउडली मैं पाकिस्तान का झंडा लेके जाऊंगी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे मुल्क ने इतना सपोर्ट किया है ऑफिशियली और मैं आप सबको इस जर्नी से इंस्पायर करना चाहती हूँ। भारतीय फौज की मकबूजा जम्मू कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी जारी है। काबिज फौज ने गुज़श्ता माह 13 कश्मीरियों को शहीद जबकि 8 को जख्मी किया। KMS के मुताबिक सितंबर के महीने में कम से कम 157 शहरियों और सियासी कारकुनों को हिरासत में लिया गया। महासिर और तलाशी की 248 कार्रवाइयों और घरों पर छापों के दौरान रिहायशी मकानों को नुकसान भी पहुंचाया गया। भारतीय फौज के सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा पकड़ा गया। भारतीय मनगढ़ंत ऑपरेशंस और उनकी तारीफ के लिए बनाए गए जाली फेसबुक अकाउंट्स का राज फाश हो गया। वाशिंगटन पोस्ट की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज ने फेसबुक पर जाली अकाउंट्स का एक वसी नेटवर्क बना रखा है जिसके जरिए पाकिस्तान, चीन और बिलखसूस मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। फेसबुक पर भारत जाली अकाउंट्स के जरिए कश्मीर को पुरअमन दिखाता है जबकि हकीकतन कश्मीर भारतीय फौज के हाथों खून में डूबा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस नेटवर्क को हिंदुस्तानी फौज की चनाह कोर ऑपरेट कर रही है जो कश्मीर के मुस्लिम अक्सरियती वादी में मुकीम है। फेसबुक के जाली अकाउंट से भारतीय फौज की कश्मीरियों के खिलाफ जालिमाना कार्रवाइयों की हिमायत की जाती है। वाशिंगटन पोस्ट ने फेसबुक कंपनी के मुतादिद वर्कर्स के भी भारतीय प्रोपेगेंडे में मुलव्वस होने की तस्दीक की। रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक के मुतादिद वर्कर्स ने एतराफ़ किया कि मोदी के दबाव में आकर कंपनी के ओहदेदारान भारत के जाली प्रोपेगेंडे को नजरअंदाज करते रहे। मौजूदा और साबिक मुलाजमीन ने एतराफ़ किया कि फेसबुक एग्जीक्यूटिव्स बीजेपी को झूठा प्रोपेगेंडा करने पर सजा देने से गुरेज करते हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इंटरव्यूज और दस्तावेज़ात से साबित हुआ कि फेसबुक एग्जीक्यूटिव्स हिंदू इंतहा पसंद रहनुमाओं की वीडियोस और पोस्ट्स को हटाने में नाकाम रहे। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि अफगानिस्तान ने भारत में अपना सिफारत खाना बंद करने का ऐलान किया है। अफगानिस्तान के सिफारत खाने के बंद होने की खबर उस वक्त सामने आई जब अफगानिस्तान के सिफारत खाने की जानिब से भारतीय वज़ारत ख़ारजा को एक ख़त इरसाल किया गया। ख़त में वाज़ेह तौर पर उन मसाइल को उजागर किया गया है जिनकी वजह से ये इंतहाई कदम उठाना ज़रूरी हुआ। ख़त के मुताबिक भारतीय हुकूमत की जानिब से अफगानिस्तान को नाकाफ़ी सिफारती हिमायत को भी सिफारत खाने की बंदिश की बड़ी वजह करार दिया गया है। खत में बताया गया है कि 6 अगस्त 2021 में अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के काबुल पर कब्जे के बाद 3000 अफगान तलबा और बहुत से अफगान शहरी अब भी वीज़ों के इजरा और सेहत के मसाइल के हल के मुंतज़र हैं। अफगानिस्तान की जानिब से सिफारत खाने की बंदिश दरअसल भारत की वफादार अफगान कम्यूनिटी और पॉलिसी साजों की जानिब से शिकायत की एक कहानी है। अफगानिस्तान की गुज़िश्ता हुकूमत में भारत में कायम अफगान सिफारत खाना जल्द बंद होने जा रहा है जिससे सिफारती लिहाज से एक बड़ी पेशरफ्त माना जा रहा है। मालदीव के सदारती इंतखाबात में अपोजिशन लीडर और पीपल्स नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद मुइज़ ने कामयाबी हासिल कर ली है। उन्होंने इंतखाबात में 54% से ज़ायद वोट हासिल किए। मौजूदा सदर इब्राहिम सालेह को सदारती इंतखाबात में शिकस्त हुई जिन्होंने 46% वोट हासिल किए। मोहम्मद मुइज़ ने इंतखाबात में इंडिया आउट मुहिम का आगाज़ किया था। मोहम्मद मुइज़ ने इंतखाबात में इंडिया आउट मुहिम शुरू की थी। इंतखाबी मंशूर में उन्होंने मालदीव से हिंदुस्तानी फौजियों को निकालने और मुल्क की तिजारत को दोबारा मुतवाज़िन बनाने का वादा किया है। नाज़रीन, मज़ीद कौमी खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने चीन के कौमी दिन के मौके पर सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली कियांग और चीनी कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए कहा है कि पाकिस्तान को अपने आयरन बरादर की कामयाबियों पर बहुत फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि चीन जदीद दौर में अमन इस्तेहकाम के साथ साथ तरक्की और खुशहाली का इस्तेआरा है। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। पंजाब भर में ऑडिनो वायरस यानी आशूब चश्म की वबा का फैलाव तेजी से जारी है। सूबे के 36 अजला में रवां साल आशूब चश्म के मरीजों की तादाद तकरीबन 4 लाख हो गई है। लाहौर में आशूब चश्म में मुब्तला रोजाना सैकड़ों अफराद अस्पतालों का रुख कर रहे हैं।
लाहौर में आंखों के वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद तकरीबन 24,000 हो गई है। महकमा प्राइमरी हेल्थ पंजाब का कहना है कि मौसम बरसात या नमी में आशुब चश्म का इन्फेक्शन तेजी से फैलता है। आशुब चश्म के शिकार अफराद की आंखें सुर्ख या गुलाबी हो जाती हैं और उनसे पानी बहता है। आंखों में खारिश और सूजन भी हो जाती है। महकमा सेहत का कहना है कि आशुब चश्म का मर्ज 8 से 10 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। आशुब चश्म से बचाव के लिए शहरी आंखों की सफाई का ख्याल रखें। तेज धूप और धुएं और गर्दो गुबार से आंखों को बचाएं। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में आई सर्जन्स को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत की है। 27 अप्रैल 1937 को मुत्तहिदा हिंदुस्तान यूपी के शहर मेरठ में पैदा होने वाले सैयद कमाल ने पाकिस्तानी फिल्मबीनों के दिलों पर 3 अशरों तक राज किया। वो पाकिस्तान के पहले कॉमेडी हीरो थे। फिल्मी कहकशां का ये सितारा 1 अप्रैल 2009 को गुरूब हुआ। रिपोर्ट तैयार की है सुहेल जमाली ने। जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं फिर जमा है हंसी। पाकिस्तान की फिल्मी सनत में 1960 का अशरा एक सुनहरी दौर है। इस अशरे में अदाकार मोहम्मद अली और वहीद मुराद के साथ जिस अदाकार ने शोहरत की बुलंदियों को छुआ वो सैयद कमाल थे। कुशादा पेशानी, चेहरे पर मुस्कान और सुतवा नाक के साथ सैयद कमाल मर्दाना वजाहत का एक नमूना थे। उनकी पहली फिल्म ठंडी सड़क 1957 में रिलीज हुई। बतौर फिल्म साज और हिदायतकार उन्होंने कई फिल्में भी बनाई, जिनमें इंसान और गधा, जोकर, शहनाई, हनीमून और शरीक हयात शामिल हैं। वो एक शो हीरो के तौर पर फिल्म बीनों में मशहूर हुए और नाकीदीन फन से अदाकारी की दाद समेटी। अरे कमर में पेटी बांधी और गले में फंदा डाला, देखेगा तो यही कहेगा रानी खाका थाला। हेलो हेलो मिस्टर अब्दुल गनी। सैयद कमाल पर फिल्माए गए गानों में ज्यादातर आवाज शौरा आफा गुलकार अहमद रुश्दी की होती थी। गुलकार मसूद राना की आवाज में भी इन पर तकरीबन 2 दर्जन गाने फिल्माए गए। आज सैयद कमाल हम में नहीं, मगर उनकी अदाकारी हमेशा उनके मद्दाहों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरती रहेगी। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। बात अनोखी लाई जो हम किसी से न कहेंगे, चुप रहेंगे। तंजीम अल अफ़गान पाकिस्तान के सरबराह अमीर अब्दुल कदीर अवान शेख ने जलसा बइस्सत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए कहा कि माह मुबारक रबीउल अव्वल अल्लाह करीम का बहुत बड़ा एहसान है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला मुख्तार। सरबराह तंजीमुल इख्वान पाकिस्तान अमीर अब्दुल कदीर अवान शेख ने डेरा नूर रबानी खर में जलसा बेसत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खिताब करते हुए कहा कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक अपनी मेराज को नहीं पहुंच सकती जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जान, माल, औलाद यानी दुनिया की हर चीज से ज्यादा ना हो। जब हम आपकी वलादत की खुशी मनाते हैं तो उससे लाजिम है कि बेसत के साथ मुंसलिक रखा जाए ताकि जो हुक्म उम्मती का है वो उम्मती उस हुक्म को पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ की कसरत से हमें दुनिया और आखिरत की भलाई अता होती है। उन्होंने कहा कि सलासिल तसव्वुफ वो निस्बत है जो कल्बे अथर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा जोड़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत है, आपकी जो निस्बत है, जो रिश्ता है, तमाम पहलुओं से आप जायजा लें। यही तकाजा है कि हुक्म की तामील की जाए। जलसे में हजारों अफराद ने शिरकत की। आखिर में अमीर अब्दुल कदीर अवान ने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए खसूसी दुआ भी फरमाई। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रजा सफ्दर कासमी ने डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन का दौरा किया। इस मौके पर जेल में खुसूसी महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया जिसमें जेल के अफसरान, स्टाफ और कैदियों ने भरपूर शिरकत की। दोनों अफसरों ने जेल के तमाम कैदियों को जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दी। उनमें मिठाई और तहाइफ तकसीम किए। इस मौके पर कैदियों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं। आप भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। जेल से रिहाई के बाद अपने आप को माशरे का एक बाइज्जत शहरी बनाने के लिए आप लड़ाई झगड़े और दंगा फसाद करने से मुकम्मल इज्तनाब करें। जज्बात में हरगिज ना आएं। डिप्टी कमिश्नर ने जेल में खाने का मयार और सफाई सुथराई के निज़ाम का जायजा लिया। जेल के शानदार इंतजाम और कैदियों के हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक बेहतरीन खाना फराहम पर सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद जहांगीर डोगर और उनकी टीम की काविशों को सराहा और उन्हें शाबाश दी। अटक में ज़िला इंतजामिया और शेख नेज़ाबाजी क्लब के ज़ेर एहतमाम घुड़दौड़ का इनेकाद किया गया। घुड़दौड़ में खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के नामवर घुड़सवारों ने शिरकत की।
रात गए तक जारी रहने वाले नेज़ाबाजी मुकाबलों में 70 घुड़सवारों ने अपनी महारत के जौहर दिखाए। मुकाबलों को देखने के लिए आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की और कामयाब सवारों को खूब दाद दी। तकरीब के एहतमाम पर मेहमान खुसूसी ने मुकाबले में कामयाब होने वाले घुड़सवारों को नकद और ट्रॉफी इनाम में दिए। इस मौके पर घुड़सवारों ने PTV न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि ये खेल सदियों पुरानी हमारी सकाफत का हिस्सा है। वक्त के साथ साथ ये खेल अवाम में बहुत मकबूल हो रहा है, इसलिए लोग जौक दुर्जौक इस सकाफती खेल को देखने आते हैं। निगरान हुकूमत की माशी पॉलिसी और इस्लाहात को कारोबारी हल्कों की जानिब से खासा सराहा जा रहा है। सखर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने हुकूमती इक़दामात की हिमायत करते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई है। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक इमरान शाहिद। सीपैक और मोटरवे के कैंप से जिला सखर में बहुत खुशहाली आएगी। मौजूदा हुकूमत ने जो एहतसाब और मुआशी इस्लाहात का अमल शुरू किया है, इसके बहुत मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। इन ख्यालात का इज़हार सखर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर बिलाल वकार खान ने सखर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 61वें सालाना जनरल इजलास से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि सखर में इंडस्ट्रियल जोन के क्याम समेत दीगर इकदाम से मुस्तकबिल करीब में मजीद माशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। तकरीब से खिताब करते हुए जिले चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह ने कहा कि सखर में तरक्याती कामों के साथ साथ आला तालीमी इदारों का क्याम भी किया जा रहा है, जिससे मकामी नौजवानों को रोजगार और आला तालीम के मौके मैसर आएंगे। सखर के ताजिर और सनतकार अपने मुलाजिमीन को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करें ताकि आलमी सतह पर मसनूआत को फरोख्त किया जा सके। मुख्तलिफ इंटर्नशिप प्रोग्राम भी शुरू करें ताकि मकामी अफराद को ज्यादा फायदा हो सके। सखर शहर में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए पार्किंग प्लाजा तामीर किया जाएगा। मलिक इमरान शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, सखर। ट्रांसजेंडर्स को शनाख्ती कार्ड बनवाने, सरकारी और निजी इदारों में नौकरियों का हक मिलने के बावजूद ये तबका अभी तक कौमी धारे में शामिल नहीं हो पा रहा है। जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए ट्रांसजेंडर ने मुख्तलिफ हुनर सीखना शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। माशरे की अक्सरियत अब भी ट्रांसजेंडर को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए ट्रांसजेंडर ने मुख्तलिफ हुनर सीखना शुरू कर दिए हैं। लोधरा पुलिस की तरफ से कायम ट्रांसजेंडर तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में ट्रांसजेंडर को सिलाई, कढ़ाई, डिज़ाइनिंग, कुकिंग और ड्राइविंग समेत मुख्तलिफ हुनर सिखाए जा रहे हैं। तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हमें कोई ऐसा मौका मैसर आया है कि हम बाइज्जत तरीके से अपना रोजगार कमा सकते हैं। लोधरा के ट्रांसजेंडर तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में तरबियत हासिल करने वाले पुरअज़्म हैं कि हुनर सीखने के बाद वो इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजार सकेंगे। मुझे काम सीखने का बहुत शौक था, ये सिलाई सेंटर का, और अल्लाह का शुक्र से मैं अब सिलाई सीख लेती हूँ। DPO लोधरा की मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने हमें ये मौका दिया। मैं अब ड्राइविंग भी सीख रही हूँ। लोधरा पुलिस की तरफ से तरबियत हासिल करने वाले ट्रांसजेंडर को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी दी जा रही है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हुकूमत ने फलाही प्रोग्राम का हिस्सा बनाकर इनकी हौसला अफजाई की है। माशरे में अपना मकाम बनाने के लिए ट्रांसजेंडर को खुद भी बदलना होगा। अपने रवैयों, अपने काम और सलाहियतें साबित करना होगा कि वो किसी से कम नहीं है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए निजी फलाही तंजीम की जानिब से क्राफ्टिंग ड्रीम्स के उन्वान से कराची के मकामी होटल में नुमाइश का एहतमाम किया गया। इस पर रिपोर्ट कर रही है नौरीन नासिर। कैनवस पर खूबसूरती से बनी रंग बिखेरती तस्वीर तलबा की वो काविशें हैं जिसमें कई अहम पैगामात नुमाया हैं। ज़हनी तनाव, मकसद और उनका हल मुसव्वरी की मदद से दिलकश अंदाज में पेश किया गया। रंगों के खूबसूरत इम्तिजाज से बनाई गई तस्वीर तारीखी इमारतें और खताती लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रही। सिर्फ यही नहीं, तलबा ने खाने की मुख्तलिफ अशिया के रैपर्स जमा करके उनसे मुनफरिद चीजें बनाकर देखने वालों को हैरान कर दिया। बहुत अमेजिंग वर्क, कैलीग्राफी बहुत अच्छी हुई हुई है, पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं, लैंडमार्क्स बनाए हुए हैं बच्चों ने। ईच पीस जो है वो इट इज़ वर्थ टॉकिंग अबाउट। इनोवेटिव आइडियाज़ हैं। मैं हैरान थी कि वो जो रैपर्स के लिए कुछ किया हुआ है, फिर वो कुछ साइंस का भी कुछ है। अमेजिंग क्रिएटिविटी हर जगह होती है, बस बच्चे को मौका चाहिए होता है, उसको ग्रूम करना होता है और उनकी सलाहियतों को आगे लेके आना होता है। मैं ऑनेस्टली बहुत सरप्राइज हुई हूँ कि छोटे बच्चे भी इतनी मेहनत और इतनी दिलचस्पी से उन्होंने ये सारा काम किया है और बहुत जबरदस्त है। तलबा ने बड़ी तादाद में हैंडीक्राफ्ट भी बनाए जिन्हें लोगों ने बेहद पसंद किया। तलबा ने इस नुमाइश में हिस्सा लिया और ये साबित किया कि हमारी नौजवान नस्ल तख्लीकी सलाहियतों से माला माल है। नौरीन नासिर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
ननकाना साहब में अदबी तंजीम वजदान के ज़ेर एहतमाम उर्दू ज़ुबान के मारूफ शायर मोहम्मद अनवर जाहिद के नए शोरी मजमुए रेत की तकरीब पजीराई हुई, जिसमें मुल्क भर से उर्दू और पंजाबी ज़बान के मारूफ शोरा और मुसन्नफ़ीन ने शिरकत की। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद। डिस्ट्रिक्ट बारू में होने वाली तकरीब की सदारत मरूफ शायर और मुहक्किक डॉक्टर उजाल हसन ने की। अपने खिताब में गुलाम हुसैन साजिद, वाजिद अमीर, हमीदा शहीन और राय मोहम्मद खान नासिर ने इस्तारों, तशबीहात और दीगर अदबी असलूब से रास्ता मोहम्मद अनवर जाहिद की नज़मों को खूब सराहा। हमें टूटती चीज़ों पे दिल गिरफ्ता और अफसरदा होना चाहिए। पाकिस्तानी मुआशरा कहाँ खड़ा है, क्या मसाइल दरपेश हैं, हमारी क्या हसरतें हैं, आरज़ुएँ हैं, वो सारी इस किताब में उन्होंने जमा कर दी। इलाकाई मंजरनामे को उन तमाम दुखों, उन मुश्किलात, उन परेशानियों के साथ मिला के बयान किया है। तकरीब से खिताब करते हुए दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि मोहम्मद अनवर जाहिद ने अपनी किताब में मुआशरे में तेजी से होने वाली तब्दीलियों और इनसे पैदा होने वाले मसाइल और आसानियों को खूबसूरती के साथ बयान करते हुए हमेशा इत्तदाल पसंदी का पैगाम दिया है। बहुत बड़ी अहमियत है कि ये सवालात उठाता है और कारी को मजबूर करता है कि वो इन सवालात के जवाबात तलाश करे। ये जो अनवर जाहिद साहब की किताब रेत है, ये उर्दू अदब में और नज़्म में एक संगे मील साबित होगी। तकरीब के दौरान मुकामी गुलकारा मुबीना अकबर ने मोहम्मद अनवर जाहिद के कलाम को अपनी खूबसूरत आवाज में पेश करके हाजरीन से खूब दाद हासिल की। जिंदगी के दामन में आ गई के रस्तों की धूल के सिवा क्या है। मोहम्मद अनवर जाहिद का शेरी मजमुआ रेत उर्दू अदब में बेहतरीन इजाफा है। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि जुनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। और अब आपको गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करते हुए बताएं कि कराची में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, लसबेला में 40, तुरबत में 40, मिट्टी 40, जबकि नवाबशाह में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।